Hello everyone, this is Neha Sharma, lecturer at Care College of Nursing. So guys, today I am here to deal with a new topic. So before I start my topic, first आप लोग ये पिक्चर देखिए, ठीक है। इसमें दो बच्चे हैं जिसमें से एक का जो हेड है वो नॉर्मल है और एक बेबी का जो हेड है वो एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है, ठीक है। एबनॉर्मल मीन्स एक बेबी का हेड जो है वो थोड़ा सा छोटा है। सो टुडेज माय टॉपिक इज माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली मीन्स माइक्रो की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो का मीन्स होता है छोटा और सेफेली का मतलब क्या होता है? सेफेली इज टोटली रिलेटेड टू द ब्रेन। So microcephaly is a condition where a baby is born with a small head or we can say like the head stops growing after the birth. And if we talk about the research, so according to the studies, one baby in several thousand is born with microcephaly. Okay, basically it is a rare neurological condition in which an infant's head is significantly smaller than the head of the other children of same age or sex. Okay, as you can see in this picture. So literally the term macrocephaly means the small head, as I told you previously then macrocephaly can be present at the birth and it may develop in the first few years of the life. ठीक है, माइक्रोसेफेली में क्या होता है कि बच्चा जो है उसका हेड नॉर्मल बेबीज जो होते हैं, नॉर्मल जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके कंपैरिजन छोटा होता है, ठीक है। सो एट द हो सकता है कि बेबी जो है वो बर्थ के टाइम पे विद माइक्रोसेफेली डिलीवर हो या फिर समटाइम्स क्या होता है कि बर्थ के कुछ साल बाद भी बेबी के अंदर ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसेफेली। नेक्स्ट वन इज कॉजेज। इफ वी टॉक अबाउट द कॉजेज, सो बेसिकली क्योंकि ये कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन है, सो इट इज अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। कॉजेस की बात क्या करते हैं हम? कॉजेस में आपकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं, लाइक जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं वो माइक्रोसेफेली कॉज करते हैं। ओके, देन सेकंड वन लाइक इन्फेक्शन। ओके, मे बी सम इन्फेक्शंस which can pass to the fetus during pregnancy and exposure to hazardous chemicals, substances or drugs. Okay, then next one is methyl mercury poisoning. Methyl mercury, basically methyl mercury, it is a very poisonous form of the mercury and it forms when the bacteria react with water. It forms when the bacteria react with mercury in water, soil or plants. Okay, so women who consume methyl mercury during pregnancy can bear children who have neurological issues. Okay, because methyl mercury has toxic effects on the nervous system during embryonic development. Okay, then next one is your craniosynostosis. Okay, so craniosynostosis, it is a birth defect in which the bones in a baby's skull join together too early. Clear? So what happened in this condition? The joint between the bones of an infant skull fuse together prematurely and it's preventing the brain from growing fully. ठीक है। नेक्स्ट जो कॉजेज है हमारा वो है साइटोमेगालोवायरस। ओके, इन दिस कंडीशन वायरस स्प्रेड थ्रू bodily fluids and pregnant women can pass it on to the unborn baby. Then next cause is untreated phenylketonuria. Okay, it is also a birth defect that causes an amino acid called phenylalanine to build up in the body. Children with phenylketonuria cannot use a part of the protein called phenylalanine. So अगर बॉडी में फेनेलाइन बहुत ज़्यादा हो जाता है, so in that condition बॉडी में फेनेलाइन की like toxicity create हो जाती है and if left untreated phenylalanine builds up in the bloodstream and cause the brain damage. Okay, so these are the causes of microcephaly. Next one is clinical manifestations. Okay, so depending on the severity of the syndrome, children with microcephaly may have small size of the baby's head. Okay, this is the basic symptom of microcephaly.
ओके, जो कि हमने प्रीवियसली अभी हमारी पिक्चर्स में भी देखा कि बेबी का जो हेड है वो नॉर्मल बेबी के कंपैरिजन छोटा होता है। सो अगर बेबी का हेड जो है वो कंप्रेस हो रहा है, हेड का स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो रहा है, सो इन दैट कंडीशन सिम्टम्स में मेंटल रिटार्डेशन भी हमें देखने को मिलेगी। ओके, देन अलोंग विद डिलेड मोटार फंक्शंस एंड स्पीच एबनॉर्मलिटीज आर देयर may be facial distortions, okay, then increased movement of the arms and legs, जिस वर्ड को हम बोलते हैं spasticity, ठीक है। पेशेंट में लाइक शॉर्ट इन हाइट मीन्स पेशेंट जो है वो हमारा ड्वार्फिज्म में रह जाएगा। पेशेंट का जो स्ट्रेचर है, ठीक है, इसका जो स्ट्रेचर है वो क्या रहेगा, शॉर्ट रह जाएगा। अलॉन्ग विद दैट हाइपर एक्टिविटी में बी देयर, ओके। देन पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, डिफिकल्टी विद कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस हो सकता है, पुअर फीडिंग हो सकती है, डेवलपमेंटल डिलेज आर देयर आल्सो, एंड अलॉन्ग विद दैट देयर आर मैनी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, लाइक पर्सन की जो थिंकिंग एबिलिटी है इन अ लॉजिकल वे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होगी। देन अदर ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल abnormalities may be there. So these are the clinical manifestations of microcephaly. Next one is diagnostic evaluation. So during pregnancy हम USG करते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे जिसमें हमें बेबी का स्ट्रक्चर दिख जाता है। देन बर्थ एंड फैमिली हिस्ट्रीज हम कलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री रिलेटेड टू एनी कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, लाइक किसी फैमिली मेंबर को या किसी मदर को या पेरेंट्स में किसी एक को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, ठीक है। देन इसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सो द मोस्ट रिलायबल वे टू असेस वेदर अ बेबी हैज माइक्रोसेफेली इज टू मेजर baby's head circumference, okay, in 24 hours after the birth. Usually the head circumference 2 deviation below the mean for age and sex, means average age और sex के according जो बच्चे का सिर का साइज होता है वो कम होता है, ठीक है। लाइक हम एक एवरेज निकालते हैं ना कि इस एज से इस एज तक के बच्चे, ठीक है, या फिर जो एट द बर्थ टाइम के जो बच्चे हैं मेल और फीमेल, उनका एक एवरेज निकालते हैं। तो उन एवरेज बेबीज से जो माइक्रोसेफेलीज के बेबीज होते हैं उनका हेड सर्कमफ्रेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, MRI करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, देन यूरिन कल्चर करेंगे। So this is the diagnostic evaluation of microcephaly. Next one is management. So if we talk about management, so this is, as I told you, this is a congenital condition और इसमें like कुछ chromosomal abnormalities present होती हैं। So except for surgery for craniosynostosis, there is generally no treatment that will enlarge children's or child's head, or we can say like reverse the complications of microcephaly. So basically treatment focuses on the way to manage child's condition, okay. For that early childhood intervention programs हम करा सकते हैं जिसमें बेबी की हम फिजिकल, स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल हमें थेरेपीज दे सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, बेबी की जो एबिलिटीज हैं, ठीक है, उनको मैक्सिमाइज करेंगे और जो उसकी डिसफंक्शन है, जो उसकी डिसेबिलिटीज हैं, उनको मिनिमाइज करेंगे अगर हम बेबीज की थेरेपी कराते हैं, ओके। देन मेडिकेशंस आर ऑफन यूज्ड टू कंट्रोल सीजर, हाइपर एक्टिविटी और अदर जो हमारी न्यूरो मस्कुलर जो सिम्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम मेडिकेशंस दे सकते हैं। एक इसको प्रिवेंट करने के लिए एक जो सबसे मेन मैनेजमेंट है वो है जेनेटिक काउंसलिंग, ओके। बेसिकली जेनेटिक काउंसलिंग में हेल्प फैमिलीज टू अंडरस्टैंड द रिस्क फॉर माइक्रोसेफेली, ओके। सो हमें पेरेंटहुड जो होता है उस टाइम पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग जब पेरेंट्स प्लानिंग करते हैं कि हाँ दे आर प्लानिंग फॉर द चाइल्ड, तो दैट टाइम हमें क्या करना है, उनको जेनेटिक काउंसलिंग देनी है। उनके जो भी जेनेटिक टेस्ट होते हैं लाइक एमनियोसेंटेसिस हो गया, इस तरह के हमें टेस्ट भी करवाने होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोसेफेली। होप यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक। टिल दैट, थैंक यू।